حزقیل نبی کا صحیفہ اس کا 37واں باب اور اس کی پہلی 10 آیات۔ خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا اور اس نے مجھے اپنی روح میں اٹھا لیا، اس وادی میں جو ہڈیوں سے پر تھی مجھے اتار دیا، اور جو مجھے ان کے آس پاس چوگرد پھرایا، اور دیکھ وہ وادی کے میدان میں باکثرت اور نہایت سوکھی تھی، اور اس نے مجھے فرمایا، اے آدم زاد، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ میں نے جواب دیا، اے خداوند خدا، تو ہی جانتا ہے۔ پھر اس نے مجھے فرمایا، تو ان ہڈیوں پر نبوت کر اور ان سے کہہ، اے سوکھی ہڈیوں، خداوند کا کلام سنو۔ خداوند خدا ان ہڈیوں کو یوں فرماتا ہے کہ میں تمہارے اندر روح ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گی، اور تم پر نسیں پھیلاؤں گا اور گوشت چڑھاؤں گا، اور تم کو چمڑا پہناؤں گا اور تم میں دم پھونکوں گا، اور تم زندہ ہوگی اور جانو گی کہ میں خداوند ہوں۔ پس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی، اور جب میں نبوت کر رہا تھا تو ایک شور ہوا، اور دیکھ زلزلہ آیا، اور ہڈیاں آپس میں مل گئیں، ہر ایک ہڈی اپنی ہڈی سے، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ نسیں اور گوشت ان پر چڑھا ہے، اور ان پر چمڑے کی پوشاش ہو گئی، پر ان میں دم نہ تھا۔ تب اس نے مجھے فرمایا کہ نبوت کر، تو ہوا سے نبوت کر، اے آدم ذات، اور ہوا سے کہہ کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اے دم، تو چاروں طرف سے آ اور ان مقتولوں پر پھونک کے زندہ ہو جائیں۔ پس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی، اور ان میں دم آیا، اور وہ زندہ ہو کر اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوئیں، ایک نہایت بڑا لشکر۔ آمین۔ آمین۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ آئیے چند لمحات کے لیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں اور خداوند سے کہیں، خداوند کلام مقدس کے اس حصے کے وسیلے سے تو مجھ سے بول، مجھ سے کلام کر، اور اپنی پاک مرضی کو مجھ پہ ظاہر کر۔ آئیے آج خداوند سے کہیں کہ خداوند آج میں تیری آواز کو سننے کے لیے آیا ہوں۔ خداوند میں کسی شخص کی آواز کو نہیں بلکہ تیری پاک زندہ آواز کو سننا چاہتا ہوں۔ تو خداوند تو مجھ سے بول، مجھ سے کلام کر، اور اپنی پاک مرضی کو تو مجھ پہ ظاہر کر، تاکہ میں تیری پاک آواز کو سنوں، سمجھوں، جانوں، پہچانوں، اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کروں۔ اور میرا قوی ایمان ہے کہ آج خداوند اس وقت میں آپ کے ساتھ بولے گا، خداوند اس وقت آپ کے ساتھ کلام کرے گا اور اپنی پاک مرضی کو آپ کے اوپر ظاہر کرے گا۔ ہاللویہ۔ خداوند کائنات کے بادشاہ، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ تو زندہ خدا ہے، تو بولنے والا خدا ہے اور سننے والے لوگوں کی تلاش میں ہے۔ اے باپ، اس وقت تیری منت کرتا ہوں کہ تو ہم سب سے بول، ہم سے کلام کر، اور اپنی پاک مرضی کو تو ہم پہ ظاہر کر، تاکہ ہم تیری پاک آواز کو سنیں، سمجھے، جانے، پہچانے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ اور خداوند آج کا تیرا کلام ہم سب کی زندگیوں کی تبدیلی کا باعث ٹھہرے۔ اے خداوند، ہم تیرے کلام کو محض سننے والے نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے والے بنے، اور آج کا تیرا کلام ہماری زندگیوں میں ایک انقلاب کو برپا کرنے کا باعث ٹھہرے۔ اور خداوند آج کا تیرا کلام ہماری زندگیوں میں ایک نئی تبدیلی کو اور زندگی کی ایک نئی ڈائمینشن کو لے کر آئے، تاکہ ہم خداوند خدا تیرے کلام کے مطابق اپنی شکل بدلتے جائیں اور تیرے نام کو عزت اور جلال دینے کا باعث ٹھہرے۔ یسوع مسیح ناصری کے نام میں یہ دعا مانگتا اور پا لیتا ہوں، آمین۔ آمین۔ میں اس حصے کو آپ کے لیے پڑھوں گا، پلیز غور سے سنیں۔ کلام مقدس میں اس طرح سے لکھا ہے، خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا اور اس نے مجھے اپنی روح میں اٹھا لیا، اور اس وادی میں جو ہڈیوں سے پر تھی مجھے اتار دیا، اور مجھے ان کے آس پاس چوگرد پھیرایا، اور دیکھ وہ وادی کے میدان میں بکثرت اور نہایت سوکھی تھیں، اور اس نے مجھے فرمایا، اے آدم زاد، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ میں نے جواب دیا، اے خداوند خدا، تو ہی جانتا ہے۔ پھر اس نے مجھے فرمایا، تو ان ہڈیوں پر نبوت کر اور ان سے کہہ، اے سوکھی ہڈیوں، خداوند کا کلام سنو۔ خداوند خدا ان ہڈیوں کو یوں فرماتا ہے کہ میں تمہارے اندر روح ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گی، اور تم پر نسیں پھیلاؤں گا اور گوشت چڑھاؤں گا، اور تم کو چمڑا پہناؤں گا، اور تم میں دم پھونکوں گا، اور تم زندہ ہوں گی، اور جانوں گی کہ میں خداوند ہوں۔
बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की, और जब मैं नबूवत कर रहा था तो एक शोर हुआ और देख जलजला आया और हड्डियां आपस में मिल गईं, हर एक हड्डी अपनी हड्डी से। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि नसें और गोश्त उन पर चढ़ आए और उन पर चमड़े की पोशिश हो गई, पर उनमें दम ना था। तब उसने मुझे फरमाया कि नबूवत कर, तू हवा से नबूवत कर कि ए आदमजाद, और हवा से कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि आदम तू चारों तरफ से आ और इन मकतूलों पर फूंक के जिंदा हो जाएं। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की और उनमें दम आया और वो जिंदा होकर अपने पांव पर खड़ी हुई। एक नहायत बड़ा लश्कर खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। चंद मेरे ख्याल 1 साल पहले या 2 साल पहले मैंने इसके बारे में कलाम सुनाया था कि ऐ खुश खड्डियों खुदावंद का कलाम सुनो। लेकिन ये मैसेज जो है वो YouTube पे है, अगर आप YouTube पे जाकर देखें तो आपको मौका मिलेगा कि आप इसको दोबारा से सुन सकें। लेकिन आज जो कलाम मुक़द्दस में से इस हवाले के ताल्लुक से मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है कि मुर्दा दौलत खुदा का कलाम सुनो। डेड मनी हेयर द वर्ड ऑफ गॉड। मुर्दा दौलत खुदा का कलाम सुनो। याद रखें, दुनिया में मुख्तलिफ किस्म की दौलत जो है वो पाई जाती है और पैसे को मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है, जैसे कि डेड मनी जिसके बारे में आज हमने कहा है, मुर्दा रुपया पैसा, मुर्दा दौलत। फिर ड्राई मनी खुश मालो दौलत, अलाइव मनी जिंदा दौलत। फिर वॉकिंग मनी आपने सुना होगा, चलती फिरती जो दौलत है। और फिर आपने सुना होगा रनिंग मनी, दौड़ती हुई दौलत। और फिर फ्लाइंग मनी के जो पैसा आता है लेकिन पर लगाकर उड़ जाता है, फुर हो जाता है। ठीक है, आज हम इसी मुख्तलिफ किस्म की जो दौलत है उसमें से एक जो है किस्म जिसको हम डेड मनी कहते हैं, उसके बारे में हम कलाम मुक़द्दस में से सुनेंगे। आपने देखा होगा कि आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत जतन करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो इनकम आपके हाथ में आती है वो बहुत थोड़ी होती है। आप बहुत सारा काम करते हैं लेकिन कमाते कम हैं। आप बहुत सारी मेहनत करते हैं लेकिन आराम कम करते हैं। और आज हम उसी में से देखेंगे कि कैसे हम थोड़ी मेहनत करके बहुत सारा पैसा हासिल कर सकते हैं, कैसे हम अपनी मुर्दा दौलत को दोबारा से जिंदा कर सकते हैं, कैसे हमारी जो दौलत थोड़ी पीढ़ी पड़ती है, कभी इधर हमारे किसी काम नहीं आती, कैसे हम उसको अपने यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे उसको अपने काम में ला सकते हैं। और फिर कैसे हम अपनी मुर्दा डेड मनी को जिंदा मनी में चेंज कर सकते हैं। इसकी मिसाल के तौर पर मैं इसके लिए आपके सामने एक मिसाल रखना चाहता हूं, बीज और फसल की। आपने देखा होगा कि आप थोड़ा सा बीज लेके जाते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर एक पैली है, अगर पैली कितनी होती है भाई? हाँ, 8 एकड़। 8 एकड़ जमीन में आप कितना बीज बोते हैं? 1 बोरी 2 बोरी? आमतौर पे 1 बोरी काफी होती है बीज, 1 बोरी। लेकिन उस 8 एकड़ में से कितनी बोरियां आप जमा करते हैं? 100 से ज्यादा बोरियां जो हैं वो फसल काटते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस बताता है कि हमें भी इस बीज की मिसाल को समझने की जरूरत है कि आप थोड़ा सा 1 बोरी बोते हैं और 1000-100 बोरियां जो है वो काट लेते हैं। तो इसी तरह से मेरे अज़ीज़ों, खुदा चाहता है कि हम थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके ज्यादा पैसा हासिल करें। और अगर आप अपने बीज को ही खा जाते हैं तो क्या आप बीज बो सकेंगे? कभी भी नहीं। बीज को बोने के लिए आपको बीज बचाना पड़ता है। अगर आप उसको बचा के नहीं रखेंगे, उसको सेव करके नहीं रखेंगे, तो आप सारा का सारा खा जाएंगे। और फिर नेक्स्ट टाइम जब आप बीज बोने लगेंगे तो आपके हाथ खाली होंगे, आपके पास कुछ भी नहीं होगा। या फिर आपको दोबारा से जाकर
बीज जो है वो खरीदना पड़ेगा। तो मेरे अजीजों, खुदावन चाहता है कि हम बीज को खाने वाले ना बने, बल्कि बीज को सेव करने वाले लोग बने, ताकि हमारी इनकम जो है, हमारे रिसोर्सेज जो है वो मल्टीप्लाई हो, वो बढ़े और उनमें कसरत आए। और यहां पर कलाम मुकद्दस में से हमने देखा है कि आज यहां पर लिखा है कलाम मुकद्दस में पहली आयत में कि खुदावन का हाथ मुझ पर था, खुदावन का हाथ मुझ पर था। आज कहें कि खुदावन का हाथ मेरे माल और दौलत पर है, क्योंकि दैट इज नॉट गॉड्स प्लान कि वी लिव इन पॉवर्टी। गुर्बत में जिंदगी बसर करना ये हमारे लिए खुदा का मंसूबा नहीं है, बल्कि खुदा की मर्जी हमारे लिए है कि हम कसरत की जिंदगी बसर करें। हमारे पास हर एक चीज वाफर मिकदार में हो, कसरत के साथ हो, किसी चीज की हमारी जिंदगियों में कमी ना हो। लेकिन हमारा क्या हाल है कि हमारे पास तनख्वाह आती है और पहले ही हफ्ते में खत्म हो जाती है, और फिर लास्ट वीक में हमें किसी ना किसी से उधार मांगना पड़ता है। दैट इज नॉट गॉड्स विल फॉर यू। ये खुदा का मंसूबा आपके लिए नहीं है, और खुदा नहीं चाहता कि हम उधार मांगने वाले लोग हों, बल्कि खुदा का इरादा यह है कि हम दूसरों को कर्ज दें, लेकिन कर्ज खुद ना लें। तो यहां पर लिखा है कि खुदावन का हाथ मुझ पर था। तो आज याद कर लें कि खुदावन का हाथ आपके मालो दौलत के ऊपर है, आपकी जॉब के ऊपर है, आपके सोर्सेस के ऊपर है, और खुदा का हाथ जो है वो बरकत वाला है, कमी वाला नहीं है, घाटे वाला नहीं है। जब खुदा का हाथ आपके ऊपर है, आपके मालो दौलत पर है, तो फिर याद रखें उस मालो दौलत में बरकत है, बढ़ोतरी है, तरक्की है, खुशहाली है, और उसमें सूखापन नहीं है। मत्ती 19वें बाब की 26वीं आयत में लिखा है कि यीशु ने कहा कि ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। याद रखें मेरे अजीजों, खुदा जो है वो आपके लिए सब कुछ करने की कुव्वत और कुदरत रखता है। वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि खुदा के लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं है। फिर दूसरी बात हम जो इस हवाले में देखते हैं वो ये है कि मैंने देखा कि उन हड्डियों में दम ना था, यानी उनमें जिंदगी नहीं थी। तो मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने हिजकिय्याह से कहा कि इन हड्डियों पर नबूवत कर, ताकि इनके ऊपर चमड़ा आए, इनके ऊपर नसें आए और इनके ऊपर गोश्त चढ़ाए। और फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसने कहा कि मैंने नबूवत की, और जैसे ही उसने नबूवत की तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हड्डियां आपस में मिल गई, और हर एक हड्डी अपनी हड्डी से मिल गई, और खुदा ने उनके ऊपर एक चमड़े की पोशिश पहनाई, और उनमें दम ना था। लेकिन मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में लिखा कि जैसे ही उसने नबूवत की तो फिर खुदा ने कहा कि दम चारों तरफ से आ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ से आ। खुदा का दम जो है वो जिंदगी है, खुदा का दम बहाली है, तरक्की है, बढ़ोतरी है और खुशहाली है। खुदा हमारी मुर्दा दौलत को जिंदगी बख्शना चाहता है, खुदा उसमें जान फूंकना चाहता है। खुदा चाहता है कि आपकी डेड मनी जो है वो अलाइव हो जाए, जिंदा हो जाए, ताकि आपके रुपए पैसे में कमी ना आए, बल्कि उसमें बढ़ोतरी आए, और उसके जरिए से आप अपने सारे बिल अदा कर सके, सारी जरूरियात को पूरा कर सके, क्योंकि खुदा बरकत का खुदा है। और याद रखें, खुदा थोड़े में भी बरकत देके उसको बढ़ा देता है। आप जानते हैं खुदा ने किस तरह से, खुदावंद यीशु मसीह ने किस तरह से थोड़ी सी रोटी और मछलियों के जरिए से कितने हजारों की तादाद में लोगों को खाना खिलाया। किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने थोड़े सी मैं जो बच गई थी, जो कि शादी में सारी खत्म हो गई थी, तो उसको बरकत देके किस तरह खुदा ने उसको मल्टीप्लाई किया। तो याद रखें मेरे अज़ीज़ों, जब आपके रिसोर्सेज के ऊपर, आपके ज़राए के ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके खानदान के ऊपर खुदावंद का हाथ होगा, तो फिर उसमें बरकत होगी, उसमें तरक्की होगी, उसमें खुशहाली होगी, और खुदा आपकी हर एक जरूरत को पूरा भी करेगा। फिर तीसरी बात जो हम इस हवाले में देखते हैं वो है कि आदमजाद नबूवत कर और कह कि ए दम तू चारों तरफ से आ। यानी आज आप खुदावंद के हुजूर में कह सकते हैं कि मनी कम फ्रॉम दी एवरी डायरेक्शन टू मी, मनी कम टू मी, ईस्ट से आ, वेस्ट से आ, नॉर्थ से आ, साउथ से आ, बिकॉज दैट इज गॉड्स प्लान फॉर यू। खुदा आपके ऊपर अपनी बरकतों को निछावर करना चाहता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा अपनी बरकत को आपके ऊपर बारिश की तरह बरसाना चाहता है, और बारिश जब आती है तो किसी चंद खास मखसूस जगह पर नहीं आती, बल्कि वो हर तरफ आती है, चारों तरफ होती है। तो मेरे अजीजों याद रखें, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हर चीज खुदावंद का हुक्म मानती है। तो आज
अपनी डेड मनी को कहें कि अलाइव इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के नाम से किसी हुक्म दे कि वो जिंदा हो जाए, और दुआ करे कि खुदा आपको अनएक्सपेक्टेड कैश मुहैया करे, गिफ्ट मुहैया करे, चेक मुहैया करे, सिल्वर एंड गोल्ड मुहैया करे, डायमंड मुहैया करे, आपको रिसोर्सेज मुहैया करे, क्योंकि खुदा ये सब कुछ कर सकता है। दुआ करे कि खुदा आपको न्यू ओपन डोर्स मुहैया करे, ताकि आपके लिए और ज्यादा नई अपॉर्चुनिटीज आए, और ज्यादा आपके लिए बंद दरवाजे खुले, ताकि और ज्यादा आप खुदा की बरकत में तरक्की कर सके। हर तरह की लानतों को यीशु के नाम से बांधे, हर तरह की कमी और घाटे को यीशु के नाम से बांधे, हर तरह के नुकसान को और नुकसान पहुंचाने वाली रूहों को यीशु के नाम से बांधे, और खुदावन की बढ़ोतरी को मांगे। अनएक्सपेक्टेड जो लॉस है उसको यीशु के नाम से बांधे। क्या होता है कि आप आटा गूंद के रखते हैं, खराब हो जाता है, आप सब्जी बना के रखते हैं, खराब हो जाती है, आप जो भी काम करते हैं वो उल्ट हो जाता है, अच्छी भली आपकी गाड़ी खराब हो जाती है, अच्छे भले आप जॉब को एंजॉय कर रहे होते हैं तो फौरन आपकी जॉब खत्म हो जाती है। क्यों? क्या ये खुदा की मर्जी है? नो, दैट इज नॉट गॉड्स विल। ये खुदा की मर्जी आपके लिए नहीं है। खुदा की मर्जी आपके लिए यह है कि आप खुदावन की बढ़ोतरी में चलें, आप खुदावन की खुशहाली में जिंदगी बसर करें, और आपकी जिंदगी में खुदा के मोजज़ात हों, क्योंकि खुदा आपकी जिंदगी में मोजज़ात करना चाहता है। मरकस 10 बाब और उसकी 27वीं आयत में लिखा है कि खुदा से सब कुछ हो सकता है। God can do everything, nothing is impossible with you। लूका 18 बाब और उसकी 27 आयत में लिखा है कि जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। God can do everything for you। और फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा हमारी नाउमीदी को उम्मीद में बदलना चाहता है। खुदा से कहें कि वो आपके लिए मोजज़ात को जारी करे, खुदा से कहें कि वो आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करे, खुदा से कहें कि वो आपके रुके हुए कामों को जारी कर दे, खुदा से कहें कि जहां पर नाउमीदी है वहां पर उम्मीद पैदा करे, और जहां से आपको कुछ भी मिलने की उम्मीद नहीं है खुदा वहां से आपको कसरत की बरकत मुहैया करे, क्योंकि खुदा ये सब कुछ कर सकता है। खुदा आपके गम को खुशी में बदलना चाहता है, खुदा आपकी कमी को बरकत में बदलना चाहता है, खुदा आपकी बीमारी को शिफा में बदलना चाहता है, खुदा आपके रुके हुए कामों को जारी करना चाहता है, खुदा आपके लिए बंद दरवाजों को फिर से खोल देना चाहता है, क्योंकि खुदा आपकी बढ़ोतरी चाहता है, खुदा आपकी तरक्की चाहता है, खुदा आपकी खुशहाली चाहता है, और वो आपकी जिंदगी में अपनी कुदरत को काम करते हुए देखना चाहता है। हाउ वी कैन ट्रीट दिस डेड मनी, हम इस डेड मनी का इलाज कैसे करें, कैसे इसको फिर से जिंदा करें, क्या हम करें कि ये हमारी डेड मनी जो है वो जिंदा हो जाए। बहुत सारे ईमानदार लोग जो हैं, और इवन के खुदा के जो खादम है, पास्टर्स हैं, वो भी इस डेड मनी का शिकार हैं, वो भी गुर्बत का शिकार हैं, वो भी तंगदस्ती का शिकार हैं, और उनका रुपया पैसा जो है वो उनके लिए बरकत नहीं ला रहा। तो हाउ वी कैन कमांड दिस डेड मनी कि वो जिंदा हो जाए? तो इसके लिए पहली बात जो है, जो याद रखने वाली है, वो है रिकंसिडर योर हार्ट्स एटीट्यूड। अपने दिल के रवैयों को दोबारा से जांचें, उनके ऊपर दोबारा से नजर करें। जिस रवैये या दिल के साथ हम खुदावन की कलीसिया की खिदमत के लिए देते हैं, क्या वो ठीक है या नहीं? क्या हम अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत के साथ खुदावन की खिदमत कर रहे हैं या नहीं? हम अपने लालच की खातिर या पासबान को मुतासिर करने के लिए दे रहे हैं, या फिर इसलिए दे रहे हैं कि हमें दूसरे लोगों को बता सके कि जी मैं तो बड़ी वफादारी से दायकी देता हूं, मैं तो बड़ी बाकायदगी से दायकी देता हूं, या हम तारीफ के लिए या दूसरों को दिखाने के लिए दे रहे हैं, हम दूसरों के सामने अपना नाम भिनाने के लिए दे रहे हैं, या खुदा के जलाल के लिए दे रहे हैं। जबकि कलाम मुकद्दस ये बताता है कि जो तुम्हारा एक हाथ करता है वो दूसरे को भी ना पता चले। खुदा की इज्जत की खातिर दें, खुदा के कलाम पर अमल करने की खातिर दें, खुदा के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए दें। इस ख्वाहिश के साथ ना दें कि इसके इवज में खुदा आपको ज्यादा देगा, यानी लालच के साथ नहीं। उसका वादा है कि वो जरूर देगा, मगर आप इसलिए दें कि आप
खुदावन की इज्जत करना चाहते हैं अपने रुपए पैसे के जरिए से। आप इस बात का इजहार करना चाहते हैं कि ये रुपया पैसा जो आज मेरे पास है ये खुदावन के वसीले से है और खुदावन ने मुझे दिया है और मैं इस रुपए पैसे का एक अच्छा मुख्तार बनना चाहता हूं। इस नीयत के साथ दे, ना कि इसलिए दे कि अगर आप 10 देंगे तो आपको 100 मिलेंगे। डोंट डू बिजनेस विद गॉड। खुदा के साथ बिजनेस ना करें बल्कि खुदा की इबादत करें। जब आप खुदा की इबादत करेंगे तो वो आपको बरकत देगा, लेकिन अगर आप खुदा के साथ लालच करेंगे तो फिर आप सिर्फ दुनियावी तौर पर बरकत हासिल करेंगे, क्योंकि खुदा का वादा है कि जब आप खुदा को देंगे तो खुदा उसको मल्टीप्लाई करके आपको देगा वापस, लेकिन आप शायद अपनी जिंदगी को खो दें। तो इसलिए मेरे अजीजों, खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है रोमियो के नाम खत उसके 12वें बाब की 8वीं आयत में कि देने वाला फ्याजी के साथ दे, यानी बगैर लालच, बगैर गर्ज या अपने हाथ को टाइट किए बगैर ना दे, बल्कि पूरे दिल के साथ दे, दिल की खुशी के साथ दे। और फिर दूसरी बात जो है, हाउ वी कैन चेंज आवर डेड मनी इनटू आवर लिविंग मनी, वो है कुर्बान गाह की रूहानी हालत को जांचे पहले, अपने दिल की कैफियत को, क्योंकि आपका दिल जो है वो एक कुर्बान गाह की तरह है, और इसको देखें कि क्या आया ये आपके दिल की कुर्बान गाह जो है ये पाक है या नहीं। अगर कुर्बान गाह पाक होगी तो उस पर चढ़ाई जाने वाली कुर्बानी भी पाक होगी और खुदावंद उस पाक कुर्बानी को कबूल फरमाएगा। अगर कुर्बान गाह नापाक होगी तो हर कुर्बानी गुजरानी जाने वाली भी नापाक होगी और कभी खुदावंद के हुजूर में मकबूल नहीं होगी। सैमुएल की किताब में आप इसको पढ़कर देख सकते हैं कि जब बनी इस्राएल गुनाह की हालत में कुर्बानी चढ़ाते थे तो खुदा उनकी कुर्बानियों से घिन खाता था। आज जब आप अपने रुपए पैसे को, अपने माल और दौलत को नापाकी की हालत में देंगे तो याद रखें वो रुपया पैसा जो है वो आपकी जिंदगी में बरकत को लाने का वसीला नहीं ठहरेगा। आपका दिल हकीकी कुर्बान गाह है और खुदा चाहता है कि ये दिल पाक हो ताकि इस दिल में से कुर्बानी, हर कुर्बानी गुजरानी जाने वाली कुर्बानी जो है वो खुदावंद को पसंद आए। फिर तीसरी बात कि आप किस नीयत के साथ, किस तरह आप अपनी मुर्दा दौलत को जिंदा कर सकते हैं, उसके लिए है कि गुनाह के साथ समझौता ना करें। डोंट कंप्रोमाइज विद सिन। जब ईमानदार गुनाह के साथ समझौता करना शुरू कर देते हैं तो वो रूहानी तौर पर ठहराव का शिकार हो जाते हैं, स्टैग्नेशन का शिकार हो जाते हैं, और इसका असर ना सिर्फ हमारी रूहानी जिंदगी पर बल्कि हमारे माल और दौलत पर भी होता है। हमारी रूहानी जिंदगी जो है वो रूहानी ठहराव का शिकार हो जाती है, हमारी जिस्मानी जिंदगी जो है वो रूहानी ठहराव का शिकार हो जाती है, हमारी माली बरकत जो है वो रूहानी ठहराव का शिकार हो जाती है। जब आपकी रूहानी तरक्की रुक जाती है तो याद रखें फिर आपकी माली तरक्की जो है वो भी रुक जाती है। जब हम गुनाह के साथ समझौता करना शुरू कर देते हैं तो रूहुल कुद्स हमारी जिंदगियों में काम करना छोड़ देता है, तो फिर हम रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर और माली तौर पर तनज़्ज़ुली का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह हम रूहानी तौर पर कमजोर हो जाते हैं उसी तरह फिर हम रूहानी तौर पर भी कमजोर हो जाते हैं, माली तौर पर भी कमजोर हो जाते हैं। जिस तरह खुदा के पाक रूह की नेमतें हमारी जिंदगी में काम करना शुरू कर देती हैं जब हम रूहानी तौर पर जिंदा होते हैं, तो इसी तरह से जब हम रूहानी तौर पर मुर्दा होते हैं या रूहानी तौर पर कमजोर होते हैं तो माली बरकत जो हैं वो भी हमारी जिंदगियों में रुक जाती हैं और हम तरक्की करने के बजाय तनज़्ज़ुली की तरफ जाते हैं, हम आगे बढ़ने के बजाय पीछे को जाते हैं। तो इसलिए मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि वो आपकी रूहानी नेमतों को बढ़ाए, खुदा आपके माल और दौलत को बढ़ाना चाहता है, खुदा आपको तरक्की देना चाहता है, खुदा आपको बेहतरीन जॉब देना चाहता है, खुदा आपको अच्छे रिसोर्सेज मुहैया करना चाहता है, खुदा आपके लिए बंद दरवाजों को खोलना चाहता है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि सुराखदार जेब में, पॉकेट में, थैली में अपने माल को जमा ना करें, बल्कि खुदा चाहता है कि आप एक महफूज जगह को अपने रुपए पैसे के लिए इस्तेमाल करें। और याद रखें, गॉड इज द बेस्ट प्रोटेक्टेड प्लेस। खुदा से बढ़कर कोई शख्स आपके माल और दौलत की
बेहतरीन जो है हिफाजत नहीं कर सकता। इसलिए खुदा को इजाजत दे कि वो आपके माल और दौलत की हिफाजत करे, वो आपके रिसोर्सेज की हिफाजत करे, वो आपकी चीजों की हिफाजत करे, क्योंकि जब ऐसा होगा तो फिर आप तरक्की करेंगे। जिस तरह खुदा का पाक रूह हमें छोड़ देता है जब हम खुदावन के साथ नहीं चलते, तो इसी तरह से खुद रूहानी जिस्मानी माल और दौलत जो है वो भी हमसे दूर चला जाता है। फिर हम रुपए पैसे के पीछे भागते हैं और रुपया पैसा माल और दौलत जो है वो हमारे आगे आगे दौड़ती है और हम उसके पीछे पीछे। तो इसलिए मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि हम अपने आप को जांचें कि हाउ वी आर सर्विंग गॉड, जिंदा मनी के साथ, जिंदा दौलत के साथ या मुर्दा दौलत के साथ। याद रखें, डेड मनी कैन नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग फॉर यू। मुर्दा दौलत जो है वो आपके लिए कोई खुदा की बरकत खरीद नहीं सकती। इसलिए अपनी मुर्दा मनी को जिंदा करने की कोशिश करें। और फिर चौथी बात जो है, हाउ यू कैन रिवाइव योर डेड मनी, आप अपनी मुर्दा दौलत को कैसे जिंदा कर सकते हैं। चौथी बात यह है, वो यह है कि बेईमानी को अपनी जिंदगियों से और अपने खानदान से दूर करें। कभी भी बेईमानी के साथ कंप्रोमाइज ना करें। बहुत सारे ईमानदार जो हैं वो एक महीना देते हैं खुदा को दया की और दूसरे महीने डर जाते हैं कि कहीं कम ना हो जाएं। कई दफा हम उतना नहीं देते जितना हमें देना चाहिए। मत्ती 25 बाब और इसकी 21वीं आयत में लिखा है कि जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। जिस फ्याज दिली के साथ आप देंगे उसी फ्याज दिली से खुदा आपको देगा। जिस कंजूसी के साथ आप खुदा को देंगे उसी कंजूसी के साथ खुदा आपको देगा। अगर आप अपने सारे दिल से खुदा को नहीं देंगे तो उसी तरह खुदा भी अपनी खुशी के साथ आपके ऊपर अपनी रूहानी, जिस्मानी और माली बरकत को निछावर नहीं करेगा। यूहन्ना 11 बाब और उसकी 44वीं आयत में लिखा है कि जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि उसे खोल दो, खोल कर जाने दो। तो मेरे अजीजों, बहुत दफा हमारे हाथ और पांव जो हैं वो लालच के साथ, खुदगर्जी के साथ, डर और खौफ के साथ बंधे होते हैं। हम फ्याजी के साथ खुदावंद को नहीं दे सकते, हम फ्याजी के साथ खुदा के लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम खुदा पर तवक्कुल नहीं करते बल्कि अपने रिसोर्सेज पर तवक्कुल करते हैं। हम खुदा को इजाजत नहीं देते कि वो हमारे बंधनों को तोड़े ताकि हम आजादी के साथ खुदावंद में बढ़ सके, बल्कि मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हम खुदगर्जी, लालच और गर्ज को मौका देते हैं कि वो हमारी जिंदगियों में काम करे। तो मेरे अजीजों, खुदा को मौका दे। जैसे कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो मुर्दा शख्स लाजर जो है वो कफन समेत कब्र में से बाहर निकल आया। आज ऐसे ही मेरे अजीजों, खुदा को इजाजत दे कि वो आपके रूहानी कफन को आपकी जिंदगियों से उतार दे, ताकि आपकी आंखें खुल जाएं और आप खुदा के जलाली चेहरे के नूर को देख सकें, ताकि आपके कफन जो है, जो बंद कफन, जो हाथ जो हैं जो कफन में बंधे हुए हैं, वो कफन के बंद जो है वो टूट जाए और आपके हाथ खुल जाए, ताकि आप फ्याजी के साथ खुदा के कामों में शिरकत कर सके, दे सके और उसमें हिस्सा डाल सके। आज खुदावंद को इजाजत दे कि वो कफन के जो बंद जो आपके पैरों को बंधे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, वो कफन के बंद टूट जाए, ताकि आप खुदावंद के लिए दूर दूर जाकर खुदा के कलाम की मुरादी कर सके। आप खुदा के कदमों के साथ, आप अपने कदमों के साथ चलकर दूसरों के लिए बेहतरी, तरक्की और बढ़ोतरी का बायस बन सके। याद रखें मेरे अजीजों, खुदा जो है वो मुझे और आपको बरकत देना चाहता है और खुदावंद हमारा खुदा बरकत का खुदा है। सो स्पीक टू योर डेड मनी। इसलिए अपनी मुर्दा दौलत से कलाम करें कि खुदा उस मुर्दा दौलत में जिंदगी डाले। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मैंने नबूवत की और कहा कि दम चारों तरफ से आ। तो आज अपने रुपए पैसे को, आज अपनी कमी कमजोरी को हुक्म दे कि वो चारों तरफ से आए। खुदा को कहें और अपने पैसे को कहें कि मनी कम फ्रॉम द ईस्ट, फ्रॉम द वेस्ट, फ्रॉम द नॉर्थ एंड फ्रॉम द साउथ, कि मनी चारों तरफ से आपको आए और आपको घेर ले। फिर ऐसा होगा, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि फिर आपके पास रखने के लिए जगह नहीं होगी। क्या यह खुदा के कलाम का वादा है या नहीं? यह वादा है, लेकिन यह पैसा उसी वक्त आएगा जब आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो जिंदा होंगे। क्योंकि याद रखें, जिंदगी
दूसरों के लिए जिंदगी का बायस बनती है। मुर्दा शख्स जो है वो किसी दूसरे के लिए नहीं कर सकता, और जो आपका मुर्दा दौलत है वो आपकी मुर्दा दौलत आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। इसलिए लेट गॉड ब्रिंग लाइफ into your resources, इसलिए खुदा को इजाजत दे कि वो आपके मुर्दा रिसोर्सेज में एक नई जान को लेकर आए। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें कि खुदा हमारे लिए बंद दरवाजों को खोले, खुदा हमें नई अपॉर्चुनिटीज मुहैया करे, खुदा हमें नए रिसोर्सेज मुहैया करे, और खुदा हमें नई जॉब्स मुहैया करे, खुदा हमारे लिए नई अपॉर्चुनिटीज मुहैया करे, और खुदा हमारे लिए वो सब कुछ करे जो वो करने का इरादा रखता है। हालेलुया। खुदावंद कायनात के बादशाह, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं कि तू जिंदा खुदा है, जो देखता है, जो सुनता है, जो छूता है और अपने लोगों को बरकत देता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं, और खुदावंद खुदा, आज मैं तेरा खादम होते हुए तेरी मिन्नत करता हूं कि तू अपने बेटों और अपनी बेटियों को और उनके खानदानों को तू दुनियावी तौर पर, रूहानी तौर पर, माली तौर पर अपनी बरकत से माला माल कर। खुदावंद तू उनके दिल की मुरादों को पूरा कर, और खुदावंद खुदा तूने नए जराए मुहैया कर, नए रिसोर्सेज मुहैया कर। हर तरह की कमी, कमजोरी और घाटे को तू यीशु के नाम से दूर कर। हर तरह का दुख, तकलीफ, बीमारी, परेशानी, कमी, कमजोरी और घाटा यीशु के नाम से जिंदगी में से जाता रहे। और खुदावंद खुदा तो इन खानदानों को अनएक्सपेक्टेड कैश मुहैया कर, गिफ्ट मुहैया कर, चेक्स मुहैया कर, सिल्वर एंड गोल्ड मुहैया कर बाप, ताकि तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल मिले, और तेरी ही कुव्वत और कुदरत तेरे लोगों की जिंदगी में अजीब तौर से काम करे। खुदा बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं, और इस कलाम को खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुस के नाम से मैं इन जिंदगियों में सील करता हूं, ताकि इब्लीस कभी भी इस कलाम को हमारी जिंदगियों में से चुरा ना पाए, बल्कि ये कलाम हमारी जिंदगियों में 100 गुना फल लाए, और उससे तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल मिले। बाप, तेरी शुक्रगुजारी करता हूं, और ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगता और पा लेता हूं। आमीन।